Good morning, everyone. My name is Aati Gupta, and you're watching my YouTube channel, Education for Kids. Today's topic is from the Cordova Science, Class 5, Chapter 11, Moon and Artificial Satellite. As we can able to know about what the moon and the artificial satellite from our standard 4th, 5th. So, today we are going to learn more about this. To know more about the moon, we are going to know about more moon tides, different phases of moon, how we uses the artificial satellite, what is solar and lunar eclipse, and the space travels. In the previous classes, we have learned about sun, the earth and the other planet. In this lesson, we will learn about the moon. हमने प्रीवियस क्लासेस में सन के बारे में पढ़ा, अर्थ के बारे में पढ़ा और अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा. आज हम मून के बारे में पढ़ेंगे. The moon is the brightest object in the sky. It has no light of its own. The moon shines at night because it reflects the sunlight. Since the moon is nearer to the earth, it appears to be bigger than the star. But actually, all the stars and the planets are much bigger than the moon. The moon is the earth's only natural satellite. It is 3,84,403 kilometers away from the earth. It revolves around the earth. It takes 27 days and 8 hours, 27.3 days to complete one revolution. तो जो मून है वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आपकी रात के स्काई में. इसकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती. मून रात को इसलिए चमकता है क्योंकि इसमें सन की रिफ्लेक्शन पड़ती है. सिंस मून आपकी अर्थ के बहुत पास है इसलिए वो स्टार से बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देता है. स्टार्स और प्लैनेट्स काफी बड़े हैं मून से. मून ही अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ से 3,84,403 किलोमीटर दूर है. ये अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है. मून को वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 27 डेज 8 आवर्स लगते हैं. इट मींस 27.3 डेज लगते हैं. Surface of the moon. The moon is just a rocky desert. Its surface is rough, uneven, and is covered with dark gray dust. Moon is made up of mountains and craters. Due to this, the surface of the moon appears to consist of bright and dark patches. Craters are saucer-shaped holes that have been made when lumps of rocks and ions called meteoroids hit the moon surface. These craters can be seen from the earth with the help of telescope. तो मून की जो सरफेस है वो कैसी है? रॉकी डेजर्ट की तरह है. उसकी सरफेस रफ है, अनइवन है और हमेशा कवर्ड रहती है डार्क ग्रे डस्ट से. मून बना हुआ है माउंटेन्स और क्रेटर से और मून की सरफेस है जो वो अपीयर होती है ब्राइट और डार्क पैचेस से. क्रेटर्स आपके सॉसर के शेप के होल्स होते हैं जो तब बनते हैं जब आपके मेटेरॉइड्स आयरन और रॉक के लम्प्स जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो मून की सरफेस को हिट करते हैं और इन सब क्रेटर्स को हम अर्थ से टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. There is no life on moon. The earth is surrounded by a layer of atmosphere which absorbs a part of sunlight. So it does not become very hot during the day. At night, the atmosphere does not allow the heat of the earth to escape. But there is no atmosphere surrounding the moon. So there is no wind, no rain, and no clouds on the moon's surface. The side of the moon facing the sun is extremely hot. The side away from the sun is freezing cold to support life. There is no air on the moon. As there is no air, the astronaut footprints remain there forever. Also, nobody can even hear a sound on the moon as sound travels in air. So life cannot exist on moon. तो जो अर्थ है वो सराउंडेड है एक एटमॉस्फेयर से जो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट
और बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देता अर्थ के एटमॉस्फेयर को, ओजोन लेयर। तो रात को लेकिन ये एटमॉस्फेयर अलाउ नहीं करता हीट को बाहर निकलने में अर्थ से। बट देयर इज नो एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द मून। मून के आसपास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, विंड नहीं है, रेन नहीं है, क्लाउड नहीं है मून की सरफेस पे। तो जो साइड मून की फेसिंग करती है सन के, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और जो साइड सन के फेस नहीं करती है वो बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, क्योंकि वहां पर कोई भी हवा नहीं है मून पर। क्योंकि वहां पर कोई हवा नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स, जब एस्ट्रोनॉट्स मून पर उतरते हैं मून की सरफेस पे, तो उनके फुटप्रिंट्स वहां पर हमेशा के लिए छप जाते हैं। और वहां पर ना ही कोई सुन सकता है, क्योंकि जो आपका साउंड है वो ट्रैवल करता है एयर के थ्रू, डेसिबल्स में, और वहां पर मून पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। Gravity of the moon. The earth pulls everything towards itself with a force of gravity. This force of gravity is also present on moon, but the size of moon is very small as compared to earth. So the force of gravity is also less. It is 1/6 of the gravity of earth. For example, if an object weighs 42 kg on earth, it weighs on the moon is only 7 kg only. तो जो ग्रेविटी होती है अर्थ की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हर चीज अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। लेकिन जो फोर्स ग्रेविटी है प्रेजेंट मून पर, दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो, ये फोर्स भी मून पर प्रेजेंट है, लेकिन बहुत ही कम प्रेजेंट है एज कंपेयर टू अर्थ। जो फोर्स है वो बहुत कम है, वो 1/6 है ग्रेविटी अर्थ की से। जैसे जो आदमी अर्थ पर 42 केजी का है, वो मून पर जाके सिर्फ 7 केजीज का ही रहता है, क्योंकि वह 1/6 हो जाता है ग्रेविटी पर। Phases of moon. Every night the moon appears to change its shape. However, the moon does not really change its shape. It is same a round ball as the earth. Due to the revolution of the moon around the earth, its position with respect to the earth changes. So the moon appears to change its shape. तो हर रात मून अपनी जो शेप है उसकी हमको बदली हुई दिखती है, लेकिन रियली में मून अपनी शेप को चेंज नहीं करता, वो वही सेम राउंड बॉल होता है जैसे अर्थ है। लेकिन हमें ऐसा क्यों लगता है कि मून ने शेप चेंज कर दी है? क्योंकि मून की रेवोल्यूशन के थ्रू हम ये महसूस करते हैं कि मून ने अपनी शेप चेंज कर दी है। सो मून अपीयर होता है, हमें दिखता है कि वो रोज अपनी शेप चेंज करता है। द डे टू डे चेंजेस इन द शेप ऑफ मून as seen from the earth are called phases of the moon. जो हम दिन प्रतिदिन चेंजेस देखते हैं शेप मून की कि चेंज हो रही है अर्थ से, उसी को हम कहते हैं फेसेस ऑफ मून। इसमें आपके मून के फेसेस हैं न्यू मून, क्रीसेंट, हाफ मून, गिब्बस, फुल मून। तो न्यू मून क्या है आपका? व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन। जब मून आपका बिटवीन होता है अर्थ और सन के, यू कैन नॉट सी द मून एट ऑल, दिस इज कॉल्ड न्यू मून। और हम उस समय मून को नहीं देख पाते, तो इस मून को हम कहते हैं न्यू मून। इट इज डार्क ऑन द न्यू मून नाइट, और बहुत डार्क होता है न्यू मून नाइट पे, क्योंकि आपका मून दिखता ही नहीं है, चांद दिखता ही नहीं है उस समय। क्रीसेंट मून, एज द मून moves further, you can see a small sunlit portion of the moon's surface. तो जैसे मून थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो आप देखेंगे कि सूरज की थोड़ी सी रोशनी मून की सरफेस पर पड़ती है, और उसी को हम कहते हैं क्रीसेंट मून। half moon, when the sunlit portions become bigger, you see half of the moon. It is called half moon. जब सन का पोर्शन थोड़ा और ज्यादा हाफ पोर्शन तक आ जाता है, तो हम उसको कहते हैं हाफ मून। गिब्बस मून, when you see more than half of the moon,
इट इज कॉल्ड गिब्बस मून। जब हमको हाफ से ज्यादा मून दिखाई देने लग जाता है तो उसको हम कहते हैं गिब्बस मून। फुल मून, when moon reaches the farthest side of the earth from the sun, you see complete moon. It is called full moon. जब आपको पूरा का पूरा चांद दिखाई देता है तो उसको हम कहते हैं फुल मून। बच्चों, आपको ये ड्राइंग भी याद करनी होगी कि फुल मून क्या है, आपका क्रीसेंट मून क्या होता है, हाफ मून क्या होता है, गिब्बस मून क्या होता है, फुल मून क्या होता है। The increased size of the lighted part of the moon is called waxing. जब increase size हो जाता है lighted part का तो हम उसको क्या कहते हैं, waxing. After this, the cycle reverses and the size of the moon decreases again and appear as a gibbous, half moon, crescent and the new moon. और फिर इसका रिवर्स साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं 15 दिन की पूर्णमासी होती है और 15 दिन की अमावस्या, तो रिवर्स साइकिल स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद मून वापस छोटा होने लग जाता है, फिर गिब्बस, हाफ मून, क्रीसेंट और न्यू मून में कन्वर्ट हो जाता है। द डिक्रीजिंग साइज ऑफ द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून इज कॉल्ड वैनिंग। और जो डिक्रीज साइज होता है लाइटेड पार्ट का मून का, उसको हम कहते हैं वैनिंग। जब हम इंक्रीज साइज की बात करते हैं तो होता है वैक्सिंग, और जब हम डिक्रीज साइज की बात करते हैं तो वो होता है वैनिंग। Landing on the moon. Apollo 11 was the spaceship that took 3 American astronauts, Neil Armstrong, Edwin Aldrin and Michael Collins, to the moon. तो यहाँ पर अपोलो 11 एक ऐसी स्पेसशिप थी जो 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को मून की सरफेस तक ले गई थी। Neil Armstrong was the first man to step on the moon on July 20, 1969. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट अमेरिकन मैन था जिसने मून की धरती पर या मून की सरफेस पर अपना कदम रखा था जुलाई 20, 1969 में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन बॉट रॉक सैंपल एंड सॉइल टू द अर्थ। और वहां से ये दोनों क्या लेकर आए थे, रॉक का सैंपल और सॉइल मून की अर्थ पर। Scientists got a lot of information about the moon from these samples. This landing on the moon was followed by many more successful missions to the moon. और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी इन रॉक सैंपल से और सॉइल से। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस एंड एडविन एल्ड्रिन। यूरी गागरिन, the first man to go to the space. Valentina, the first woman that goes to the space. Rakesh Sharma, the first Indian that go to the space. And here the Kalpana Chawla, the first Indian woman. Now moon takes dash days to complete one revolution. So moon takes 27.3 days to complete one revolution. The sun, the small sunlit portion of the moon's surface is called crescent moon. The spaceship that took 3 American astronauts on the moon was Apollo 11. Eclipse. An object that blocks the light and does not reflect it at all is called opaque object. वो ऑब्जेक्ट जो आपकी लाइट को ब्लॉक कर देता है और पूरी लाइट पास होने ना दे, उसको हम कहते हैं opaque object. When light falls on opaque object, it casts a shadow. जब लाइट opaque object पे पड़ती है तो एक शेडो क्रिएट होती है। The earth and the moon are also an opaque object. जो अर्थ और मून है ये भी क्या है, आपके एक तरह के opaque object है। When the sunlight falls on the earth and the moon, they cast shadow. Sometimes earth casts a shadow on the moon and sometimes moon casts a shadow on the earth, depending upon their positions. The shadow of the earth and the moon produced by sunlight are called eclipse. At the time of eclipse, the sun, the moon and the earth are in the straight line. तो eclipse क्या होता है हमारा, जब हमारी सनलाइट अर्थ और मून पर पड़ती है तो ये शेडो कास्ट करते हैं। कभी कभारी अर्थ भी कास्ट करता है शेडो मून पर, कभी कभार मून कास्ट करता है शेडो अर्थ पर, डिपेंड करता है कि उनकी पोजीशन क्या है। यही शेडो जो अर्थ और मून
प्रोड्यूस करते हैं सनलाइट की हेल्प से, उसको हम कहते हैं एक्लिप्स। कभी कभारी एक्लिप्स हमारा सन मून अर्थ भी कभी कभारी स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द लूनर एक्लिप्स। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, जब अर्थ हमारी सन और मून के बीच में आ जाती है तो ये एक्लिप्स कहलाता है आपका लूनर एक्लिप्स। अर्थ सन और मून के बीच में है यहाँ। In a straight line when revolving around the sun, the earth casts its shadow on the moon. तो अर्थ की शेडो किस पे पड़ती है? मून पर। It blocks the light of the sun to reach the moon. और यहाँ पे जो सूरज की रोशनी आ रही है वो ब्लॉक हो गई है अर्थ की वजह से। Then the moon cannot be seen partly or whole. तो मून आपको पार्टली और होल नहीं दिखाई देता और इसी को हम कहते हैं लूनर एक्लिप्स। The part of the shadow that totally blocks the sunlight of the earth, sunlight is called umbra. तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी आपकी ये ब्लैक कलर की शेडो है जिसने मून को पूरा का पूरा ढक दिया है और मून तक रोशनी जाने ही नहीं दे रहा, उसको हम कहते हैं अम्ब्रा। और कुछ शेडो होती है जो ब्लॉक करती है सनलाइट के पाथ को थोड़ा थोड़ा, तो दैट इज नोन एज प्रीनम्ब्रा। When the moon is completely in the dark shadow of the earth, it is called total lunar eclipse. जब मून completely अर्थ की डार्क शेडो में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं टोटल लूनर एक्लिप्स। When the moon is partly hidden by the dark shadow of the earth, it is called partial lunar eclipse. और जब अर्थ से थोड़ी थोड़ी रोशनी मून पर पड़ती है तो हम उसको कहते हैं पार्शियल लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स। When the moon comes between the sun and the earth, जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो हम उसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स। The moon casts its shadow on the earth. The people in certain parts of the earth cannot see the sun at all or see it only partially for some time. It is called solar eclipse. तो जब हमारी मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो मून कास्ट करता है शेडो अर्थ पर और कुछ कुछ जगहों पर अर्थ पे ये दिखाई भी नहीं देता तो सन को देख नहीं पाते, इसी को हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। When the moon hides the sun completely, it is called total solar eclipse. जब मून सन को टोटली हाइड कर देता है तो उसको हम कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स। No sunlight reaches the earth and it becomes totally dark even during the daytime. When moon hides the sun partially, it is called partial solar eclipse. तो कोई भी सनलाइट अर्थ तक नहीं पहुंचती और दिन में भी रात जैसा दिखता है। जब चंद्रमा सूरज को कुछ कुछ हाइड करता है तो उसको पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। It occurs only on new moon day. और ये सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब न्यू मून डे होता है। You should never look at the sun directly during a solar eclipse. It can damage your eyes. हमें सोलर एक्लिप्स जब होता है, सूर्य ग्रहण जब होता है, हमें सूरज को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए क्योंकि ये हमारी आंखों को डैमेज कर सकता है। A brightening ring of light called corona can be seen around the sun during the total solar eclipse. यहाँ पर आप देखेंगे एक ब्लैक कलर का सर्कल है, उसके आसपास चारों तरफ रोशनी है। हमें ये एक ब्राइट कलर की रिंग ऑफ लाइट दिखाई देती है कोरोना जब सोलर एक्लिप्स होता है। टाइड्स। टाइड्स आर कॉज्ड मेनली बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। टाइड हमारा तब होता है जब टाइड का लेना देना चंद्रमा से होता है और ये तब होता है जब हमारा वो ग्रेविटेशनल पुल होता है। ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल पुल द लेस ऑफ वाटर राइजेस अप एंड गोज डाउन ट्वाइस एवरी डे। जो हमारा पानी है इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पानी 2 बारी दिन में ऊपर जाता है, राइज होता है और 2 बारी ही नीचे आता है। द रेगुलर राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द लेवल ऑफ वाटर इन द सी और ओशन is called tide. जो रेगुलर राइजिंग होता है, समुद्र का ऊंचा उठना और समुद्र का नीचे जाना, वो
आपका जो सी और ओशन में होता है उसको हम बोलते हैं टाइड्स। टाइड्स आपके दो तरह के होते हैं, हाई टाइड होता है और दूसरा लो टाइड। द मून्स पुल्स ऑन द सी वाटर इज मोर देन दैट ऑफ सन। दिस इज बिकॉज द मून इज मच क्लोजर टू अर्थ। Therefore, the sea water on the side of the earth facing the moon gets attracted upward. This causes the high tide. In the areas between the two high tides, the water forms low tide. तो जो मून होता है वो पुल करता है सी वाटर को ज्यादा सूरज से,